अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑलराइट, तो एक बच्चे ने मुझे ये पेपर भेजा। अक्टूबर नवंबर 2021। ठीक है जी। पेपर टू। और उसने बोला सर ये जो है ना, ये सवाल जो है ना मुझसे इसका एक सॉल्व नहीं हो रहा, प्लीज वो आप देख लें, समझ में भी नहीं आ रहा मार्किंग स्कीम से भी और एग्जामिनर रिपोर्ट से भी। तो ये था 4A और 4B। तो 4A इज क्वाइट इजी, बट 4B बड़ा ट्रबल करने वाला है। तो पहले हम 4A को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि हम इसके अंदर मार्क्स उठा सकें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसी केस स्टडी को देख लेते हैं। केस स्टडी क्या कह रही है? प्ले सेफ। प्ले सेफ सर क्या करता है? सर टॉयज बनाता है, कारी भाई का नाम है। वुडन टॉयज बनाते हैं, ठीक है। Her children are now at a school. Kari decided to start her own business making wooden playground equipment. Kari started to be sole trader है 3 years ago in country Z. She wants an income from the business but also wants to spend time with her children. Kari wants the business to remain small, deliberately small चाहती है. However, if the business grows, Kari may need to change the another type of business organization. Kari carries out all the management roles in the business. Kari uses job production to produce the high quality, individually designed playground equipment. Kari designs all the equipment herself. Job production kari. She employs three skilled workers to help her make the product. PP currently makes both large and small items or playground equipment each week. Car uses cost plus pricing as very item of playground equipment uses different quantities of raw materials. He sells small items of playground equipment to retailers and large items of playground equipment to government. There are many competitor in the market. Kari plans to obtain new machinery which will cost 20,000. She is considering using crowdfunding. And this is one way to raise capital for new business investment. Other ऑप्शन इंक्लूड लीजिंग द मशीन, लीज पे ले ले, और आस्किंग द बैंक फॉर अ लोन। ठीक है। कारी हैज डेवलप्ड अ यूनिक प्रोडक्ट दिस ईयर। देयर आर नो अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। मतलब भाई यही बना रही, कोई और बना नहीं रहा। ओके, और राइट, इसको पढ़िएगा। ये अपेंडिक्स 1 है, ये सर अपेंडिक्स 2 है। अब देख लो, ये अपेंडिक्स 2, ये 4B से इसका ताल्लुक होगा। और राइट, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं पेपर को। इस केस को पढ़ लीजिएगा, पेपर याद रखिए। पेपर कौन सा है? अक्टूबर नवंबर 2021, ताकि आप खुद भी घर पे इसको डाउनलोड कर सकें। आइए इसको करते हैं हम सॉल्व। और राइट, यह है आपका एक्सप्लेन 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैरीड आउट बाय कारी। सर ये तो बड़ा आसान है सर। फंक्शन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताने, मैनेजमेंट के फंक्शन बताने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। 4 पूछ रहा था, वरना डेलीगेशन की इसके अंदर डाल देते। सर फंक्शन 1 हम डालते हैं इसके अंदर। प्लानिंग, प्लानिंग which involves setting aim and and objectives for the business, objectives for the business. Kari plans the design. Kari plans the design and and production of playground equipment, of playground equipment aiming to increase aiming to increase the output by 3 item per week. 3 item per week. It will meet what? Customer demand and growth of the business, या फिर एंड ग्रोथ। ठीक है जी।
पहला हमने डाल दिया प्लानिंग के बारे में, दूसरा हम डालते हैं सर ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में लिखते हैं दूसरा आंसर हम लोग। ऑर्गेनाइजिंग। कलर चेंज कर लूं क्या? कलर चेंज कर लेता हूँ, रुक जाओ, ताकि उसको अच्छे से डिफरेंशिएट कर सको। ऑर्गेनाइजिंग which involves which involves which involves arranging arranging resources and tasks to achieve objectives या business objectives as Kari, नाम कैसा है कारी, organizes tasks for her three skilled employees to ensure efficient production and ensure the availability of resources। ठीक है, ये हमने ऑर्गेनाइजिंग का बना दिया। अब हम जाते हैं किसके ऊपर? अब हम जाते हैं कोऑर्डिनेटिंग के ऊपर। फंक्शन 3 यूज कोऑर्डिनेटिंग। Coordinating ensures that different aspect of the business work together effectively effectively. So Kari coordinates tasks for एप्लीकेशन करेंगे जॉब प्रोडक्शन ensure that her design ensure that her designs are accurately executed by her employees। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शन। अब चौथा फंक्शन इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं, ब्लैक से ऐड करते हैं चौथा फंक्शन। ये क्या हुआ? ओके, दैट इज क्या? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग involves monitoring performance
performance, monitoring performance and making adjustment to ensure that objectives are met. Ascari controls the production process, controls the production process to ensure that 15 small items of playground for home use are produced each week. ठीक है, ये हो गया आपका सर 8 मार्क वाला आंसर। इसके अंदर आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन करने थे, ये मैंने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन कर लिए। बस दो मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिएगा, मगरिब की अजान हो रही है। बस हम मगरिब की अजान के बाद अगला सवाल इसका क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके भाई, तो अजान हो गई। अच्छा जी, अब ये ना इसके 4B पे जा रहे हैं। तो ना एक अच्छे बच्चे ने ये सवाल भेजा, ऐसे ही नहीं भेजा। पहले मैंने बोला क्या हो गया यार, इससे सॉल्व नहीं हो रहा। But this is difficult. Using Appendix 2 and other information, consider whether PPE should produce only large items of playground equipment or produce only small items of playground equipment. Justify your answer using suitable calculation. अब इसको ऐसे ही प्रोड्यूस ओनली लार्ज आइटम्स ऑफ प्लेग्राउंड इक्विपमेंट लिख के शुरू मत हो जाना, बल्कि उसने बताया ना इधर आपको कि आपने सर अपेंडिक्स 2 को यूज करना है और फिर उसके पास आपने क्या करना है, जस्टिफाई योर आंसर यूजिंग सुटेबल कैलकुलेशन। इसका मतलब इसने थोड़ा सा आंसर इसको मुश्किल बना दिया। तो डायरेक्ट शुरू में तो जाना, भले कैलकुलेशन करके एक सही आंसर देना है इसका। ठीक है, तो हम देखते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे सामने ये रहा अपेंडिक्स। इसकी फोटो ले लेंगे, इसको सॉल्व करना है तो अपेंडिक्स की, और एक तरफ फोटो रख के इसको सॉल्व करें। ठीक है, मैं भी इसको जरा एक बार देख लूं। एवरेज सेलिंग प्राइस, ओके, 100,000 एवरेज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ईच। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, हम प्रोड्यूस हम प्रोड्यूस, स्मॉल था या लार्ज था, प्रोड्यूस ओनली लार्ज आइटम्स ऑफ प्लेग्राउंड इक्विपमेंट, प्रोड्यूस ओनली लार्ज आइटम्स ऑफ प्लेग्राउंड इक्विपमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके रेवेन्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसके रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हैं। सर रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है लार्ज आइटम की। लार्ज आइटम ये है, स्मॉल आइटम ये है। ओके, लार्ज आइटम की एवरेज सेलिंग प्राइस है 1000। ठीक है, और सर आउटपुट ईच वीक निकल रहा है 3। ठीक है, इसका मतलब इसका रेवेन्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा सर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर, हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। दैट विल बिकम, वीकली रेवेन्यू निकालने के लिए 3 × 1000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, डॉलर 3000 का हमारा क्या है सर, $3000 का हमारा रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है,
इसके बाद हम क्या निकालते हैं सर, इसके बाद हम करते हैं इसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन। सर कॉस्ट कितनी आ रही थी हमें, कॉस्ट कितनी आ रही थी। कॉस्ट देखने के लिए हमें सबसे पहले एवरेज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर यहाँ गिवन है। एवरेज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर हमें जो आ रही है वो आ रही है सर $500। एवरेज कॉस्ट आ रही है ये, और हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं आउटपुट ईच वही 3, हम 3 प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट निकालने के लिए हम इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या नाम है हमारा ये हमारे रेवेन्यूज आ गए $3000, इधर मैं लिख देता हूँ बल्कि रेवेन्यूज। ठीक है, अब कॉस्ट में हमने क्या करा था, कॉस्ट में हमने 500 आया था ना, 500 एग्जैक्टली 500 और मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो मैथ्स वैसे भी अपनी थोड़ी सी कमजोर है भाई। तो हम क्या करते हैं इधर 3 × 500 करते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 3 × 3 डॉलर 1500 हमारी क्या आ रही है सर, हमारी कॉस्ट आ रही है। $1500 हमारी कॉस्ट आ रही है। और फिर हमने क्या कैलकुलेट करना है, और इसके अंदर हमने हमने अपना प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर दी है, बिकॉज हमने दोनों को कंपेयर करना है ना, कि उसको लार्ज आइटम ज्यादा बेचने हैं या फिर उसको स्मॉल आइटम्स बेचने हैं। ठीक है जी, तो इसकी अब हम क्या करते हैं, हम इसका वीकली प्रॉफिट निकालेंगे, वीकली प्रॉफिट निकालेंगे। तो सर हमारा रेवेन्यूज क्या थे, रेवेन्यूज थे हमारे 3000, कॉस्ट थी हमारी 1500। तो सर हमने क्या किया, हमने 3000 को डायरेक्ट माइनस किया, डायरेक्ट भी लिख सकते हो लेकिन ये ताकि आपको समझ में आए मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, माइनस किया 1500 से, 1500 आपकी कॉस्ट थी। तो आपका सर क्या निकल गया वीकली प्रॉफिट, आपका वीकली प्रॉफिट ऑब्वियसली $1500 ही आ गया, बिकॉज 3000 में से 1500 तो आपकी ये कॉस्ट कट गई ना, जब 1500 आपकी कॉस्ट कट गई तो $1500 का आपका वो आ गया। अब सर इसका क्या निकालेंगे, अब निकालते हैं सर जीपी मार्जिन। जीपी मार्जिन का फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट था मेरा 1500, इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, सेल्स, सेल्स थी मेरी 3000, 3000 मैंने इसको यहाँ कर दिया और इसको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100, जो मुझे कैलकुलेट करने दो। 1500 डिवाइड बाय 000 कट गया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका निकल कर आ रहा है 50% जीपी मार्जिन। 15% जीपी मार्जिन। ठीक है जी, ये आपका 50% का जीपी मार्जिन निकल के सामने आ गया। तो सर ये आपकी कैलकुलेशन आई है। अब इसको करते हैं आगे, लिखते हैं इसको, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ से लिखने के लिए, येलो से कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने, बिकॉज देखो हमने करना क्या, हमने इसको बताना है ना, कंसिडर वेदर पीपी शुड प्रोड्यूस ओनली लार्ज आइटम ऑफ प्लेग्राउंड और प्रोड्यूस ओनली स्मॉल आइटम। ठीक है, तो इसको अब इसको मैं बताता हूँ क्या करें हमने। गवर्नमेंट increased because it was written in case study, spending on children's playgrounds, children playgrounds with a कितने मिलियन का लगाया था, एक सेकंड रुकें देखते हैं यहाँ पे। with the government has the government in country Z has allocated $10 million to improving children's playground। ओके, तो 10 million का लगाया था ना। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे प्ले ग्राउंड्स विद $10 million budget indicating
indicating high demand, indicating high demand for PPE, large items. 10 मिलियन का लगाया हुआ गवर्नमेंट ने बजट, तो ऑब्वियसली हाई डिमांड तो आएगी पीपीई लार्ज आइटम्स। ईच पब्लिक ग्राउंड, ईच पब्लिक प्लेग्राउंड या फिर ग्राउंड हैज $5,000 allocated. Moreover, PPE's reputation, PPE's reputation as the main supplier, to the government, can lead to increase sales to both the government and retailers due to brand trust. ये हमने क्या बताया, हमने इसको लार्ज प्रोड्यूस ओनली लार्ज आइटम्स ऑफ प्लेग्राउंड इक्विपमेंट का बताया। अब हम इसको क्या बताएंगे, अब हम इसको कैलकुलेशन भाई एक बार, ठीक है, मार्केटिंग स्कीम से चेक भी कर लेना। और अब हम इसको क्या बताएंगे, प्रोड्यूस। लेकिन इस सवाल जो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस तरह सॉल्व होगा, इसको हल्के में बस डायरेक्ट लिख लिख के नहीं भाग जाना, बल्कि नहीं, इसको तमीज से कैलकुलेट करके एक सही आंसर निकाल के देने से हमने निकाला ना 50% का प्रॉफिट मार्जिन, जीपी मार्जिन इधर आया, इस तरह इस आंसर को सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही लिख कर नहीं भाग जाना है, प्रॉपर कैलकुलेशन और सही जवाब देने। और फिर सर हम आते हैं किसके ऊपर, स्मॉल आइटम्स के ऊपर। स्मॉल, प्रोड्यूस ओनली स्मॉल आइटम्स ऑफ प्लेग्राउंड इक्विपमेंट। अगेन इसका भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेवेन्यू कैलकुलेशन करते हैं ना। तो इसके भी रेवेन्यू कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है सर, सबसे पहले एवरेज सेलिंग प्राइस निकालनी है। एवरेज सेलिंग प्राइस इसकी है 100, ठीक हो गया, 100 है। आउटपुट कितना जा रहा है, इसका ज्यादा आउटपुट जा रहा है भाई, उसको 3 जा रहे थे, ये 15 जा रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या करना है फिर, ऑब्वियसली हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हमने क्या कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आया, 15 मल्टीप्लाई 15 टाइम्स 100, 15 टाइम्स 100, $1,500, 1,500 रेवेन्यूज। और फिर हम क्या निकालेंगे इसकी, फिर हम ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन निकालेंगे। तो इसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन देखते हैं क्या है, कॉस्ट की कैलकुलेशन देखते हैं क्या है, कितने आइटम बना रहे हैं, एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी। एवरेज कॉस्ट हमारी आ रही है $25 हमारी एवरेज कॉस्ट है इसकी। और सर वीकली कॉस्ट अगेन वही 15, ये वाली जो थी ना,
ये आ रही है ना, एवरेज कॉस्ट निकालना, आउटपुट 15 है और एवरेज कॉस्ट हमारी कितनी है, 25 है। तो हमने क्या किया, अगेन यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल्स टू कितना बन गया, कैलकुलेटर चलाओ, कैलकुलेटर चलाओ, कैलकुलेटर चलाओ, 15 मल्टीप्लाई बाय 25, ये बन गया हमारा $375। क्या है हमारा, $375 कॉस्ट है, कॉस्ट है। अब हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमारा वीकली प्रॉफिट में से हमें कॉस्ट को माइनस करना था ना। वीकली प्रॉफिट क्या आया था हमारा, 1500, 1500 माइनस कॉस्ट क्या थी, 375 इज इक्वल्स टू, ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया $1125, आई थिंक 1125 ही होगा ये, 11, एक बार कैलकुलेटर पे भी कर लूँ मैं, 112 1500 माइनस 375, $1125। पहले वाले का क्या आ रहा था, लार्ज आइटम का देखते हैं, लार्ज आइटम का क्या आ रहा था हमारा, लार्ज आइटम के हमारा आ रहा था $1500, इधर आ रहा है $1125। ऑल दो हम ज्यादा बेच रहे हैं, 15 बेच रहे हैं बिकॉज ये स्मॉल आइटम है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि हमारा जो प्रॉफिट है ना, वो क्या हुआ है, हमारा प्रॉफिट जो है ना यहाँ पे कम हुआ है। लेकिन ये फैसला हम अभी नहीं करेंगे, ये फैसला हम करेंगे सर, ये फैसला हम करेंगे सर जीपी मार्जिन निकाल के। जीपी मार्जिन का फॉर्मूला वही, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स तो हमारा क्या था, 1125 डिवाइडेड बाय सेल्स हमारी कितनी थी, 1500 थी, मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर करने तो मुझे क्या आ रहा है, 1125 डिवाइडेड बाय 1500 जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रहा है सर, ओ माय गॉड, 75% जीपी मार्जिन। पहले वाले का क्या जीपी मार्जिन आ रहा था, पहले वाले का जीपी मार्जिन आ रहा था आपके सामने 50% लार्ज आइटम पे, और स्मॉल आइटम पे आपका जीपी मार्जिन आ रहा है 75। जबकि आप देख रहे हो कि आपके वीकली प्रॉफिट पहले वाले में ज्यादा थे, लार्ज में, और स्मॉल में कम है, बट जीपी मार्जिन इधर ज्यादा है, 75% है। ठीक है, इसका मतलब आपका कॉस्ट ऑफ जो सेल्स है वो जो है ना आपकी कम आई हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका निकला है। ठीक है, अब इसको लिखते हैं इसके बारे में, देयर is there is a growing trend, there is a growing trend among पेरेंट्स, क्योंकि केस स्टडी के अंदर भी हमें मेंशन किया हुआ था ना, among पेरेंट्स टू परचेज स्मॉल आइटम्स, कि वो तो गवर्नमेंट ले रही थी और आपके रिटेलर्स दे रहे थे, लेकिन ये तो हम घर में भी बेचेंगे ना, स्मॉल आइटम्स फॉर, जैसे कि टॉयज वगैरह होते हैं, फॉर होम यूज। देखो ना, इसने हमें दिखाया था यहाँ पे टॉयज, ये वाले अपेंडिक्स के अंदर इस टाइप के, तो बड़े भी हैं इसके अंदर और छोटे आइटम्स भी हैं। तो छोटे आइटम्स तो फिर घर पे भी जाएंगे, फॉर होम यूज। ओके, फॉर होम यूज इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग a steadily steadily increasing demand, increasing increasing demand for small items। ये कौन है भाई, फॉर स्मॉल आइटम्स, फॉर स्मॉल आइटम्स इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन। ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है, बाहर रैली है क्या? अबे भाई, इन द लॉन्ग रन, इनको बोलो यार मैं इधर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।
गाने चला रहे हैं, लॉन्ग रन। मोर ओवर, मोर ओवर रिटेलर्स, इतना मुश्किल सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, गाने चला रहे हैं, बताओ जरा। रिटेलर्स रिपोर्ट इंक्रीजिंग डिमांड, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिमांड, suggesting what, suggesting recommending नहीं, suggesting is a good word, suggesting suitable word, suggesting a strong and and growing market for small items, small items of प्लेग्राउंड। सॉरी बेटा, ये बाहर से कोई रैली जा रही है। प्लेग्राउंड इक्विपमेंट, ठीक है। ये आपका प्रोड्यूस ओनली स्मॉल आइटम्स ऑफ प्लेग्राउंड इक्विपमेंट का हो गया, देख रहे हो। तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं था ये। मैं चाहता तो मैं इसकी डायरेक्ट भी मैं इसकी कैलकुलेशन दे सकता था आपको, लेकिन वो फिर ना आपको समझ में नहीं आता किस तरह की है। इसलिए मैंने इसको ना थोड़ा डिटेल्ड में जाके पूरी कैलकुलेशन दी। आप भी ऐसे ही करना, आप भी ऐसे ही करना, ठीक है। अब इसका लिखते हैं कंक्लूजन। यार कंक्लूजन के लिए लाइंस बड़ी कम देता है यार, ये गलत बात है यार। अब कंक्लूजन में लंबा सोच के बैठा हूँ, बट करते हैं इसका कोई जुगाड़ करते हैं, ठीक है। ब्लैक से लिख रहा हूँ मैं कंक्लूजन, या मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ कंक्लूजन, ओके। प्रोड्यूसिंग ओनली लार्ज आइटम ऑफर्स हायर इमीडिएट हायर, सही है, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक आता रहे, अच्छी बात है, दिल लगा रहेगा। हायर इमीडिएट, लेकिन ये जो मैं मतलब वर्ड जो मेरे मिस हो रहे हैं ना दिमाग से, इसकी वजह से। हायर इमीडिएट प्रॉफिट कितना था, $1500 वीकली। 1500 ही था ना भाई, एक सेकंड रुको देख लो मैं। हाँ भाई 1500 ही था। 1500 वीकली ड्यू टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ड्यू टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ड्यू टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्पाइट, मुश्किल मुश्किल वर्ड सोचना भी मुश्किल है। डिस्पाइट अ प्रॉफिट लोअर प्रॉफिट क्या आया था, लोअर प्रॉफिट मार्जिन आया था। स्मॉल में 75 आया था, इसके अंदर 50 आया था। लोअर प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 50%। However, 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 the growing demand, बल्कि रुको, however से हम कलर चेंज कर देते हैं ना। however से हम कलर चेंज करते हैं, हम ब्लैक पे चले जाते हैं। ओके, अब दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी बताऊंगा। However, the demand, growing demand for small items, नहीं भाई ये रैली वाले हल्के ही नहीं आ रहे। For small items driven by parental purchases, पेरेंट्स खरीद रहे थे ना भाई, पेरेंटल परचेजेस। ये कहीं एक्सपो में तो कोई वो नहीं हो रहा, एक्सपो में चल रहा है ना ये। अबे भाई एक तो एक्सपो सेंटर के सामने बेटा, मेरी बात याद रखो, कभी एक्सपो सेंटर के सामने ऑफिस मत लेना। ये सारे इवेंटों का शोर आपके पास आएगा। सुबह सुबह बच्चों के पेपर देने के बाद रोने की भी आवाज आ रही होती है, जिनका अच्छा नहीं हुआ होता। एंड अली भाई डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, भूल जाओगे, वर्ड्स भूल जाओगे। एंड अ हायर प्रॉफिट मार्जिन, कितना था प्रॉफिट मार्जिन,
प्रॉफिट मार्जिन कितना था, कितना कितना 75 था स्मॉल का, लार्ज का 50, और 75%, लार्ज का 50 था और स्मॉल का 75% था। सजेस्ट बोथ, सजेस्ट बोथ, सजेस्ट बोथ करूंगा तो हिपोक्रेसी हो जाएगी ना। इसको मैं क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ बोथ को, सजेस्ट बेटर कर देता हूँ, सजेस्ट बेटर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स देयरफॉर, अब मैं क्लेम करूंगा, क्लेम, क्लेम करते हैं आओ, देयरफॉर वर्डिक्ट जो होती है ना, ये मेरे सर ने मुझे सिखाई थी वर्डिक्ट, देयरफॉर while large item, while large items are beneficial, beneficial short term, short term, therefore while large items are beneficial short term, short term focusing, focusing on a small item, focusing on small items could yield, could yield greater sustained, sustained profitability, प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज देखो इसकी सेल्स कम थी, इसके रेवेन्यूज कम आ रहे थे, लेकिन जीपी मार्जिन ज्यादा था इन द लॉन्ग टर्म, इन द, बल्कि इन द लॉन्ग टर्म इन द फ्यूचर कर देता हूँ इसके, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट अच्छे आ रहे थे, जबकि और इसकी सेल्स भी इसका आउटपुट भी ज्यादा बिक रहा था, लेकिन सर इसके रेवेन्यूज कम थे बिकॉज ये स्मॉल आइटम्स हैं, बट इसको पेरेंट्स वगैरह भी खरीद रहे हैं ना, सिर्फ गवर्नमेंट और आपके पोटेंशियल रिटेलर्स नहीं खरीद रहे। तो ये आपका पूरा आंसर बन गया, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ना पॉज करके ले लेना। तो सर मानते हो ना, था ना मुश्किल आंसर, था ना मुश्किल आंसर, अल्लाह ना करे आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं, ठीक है, बहुत इजी से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, आप इसी तरह इसको पटक के सॉल्व कर देना। जबकि मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, आपकी तो मैथ्स ही माशाल्लाह अच्छी होगी, अभी अभी मैथ्स का P1 P2 दिया होगा आप लोगों ने। तो दैट्स हाउ यू गेन 12 मार्क इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कंक्लूजन में क्या करना होता है, भाई देख लो मैंने लिख दिया कंक्लूजन में क्या करना होता है, इसको पढ़ लो, समझ में आ जाएगा सारा कंक्लूजन के अंदर क्या करना होता है, ठीक है। और इन दोनों में क्या करना होगा वो भी मैंने आपको पूरा लिख के इन दोनों को एक्सप्लेन कर दिया, लाइक फॉर एग्जांपल पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इनकी कैलकुलेशन दी आपको, कैलकुलेशन देने के बाद मैंने आपको इनकी मार्केट कंसिडरेशन बताई, सही है, और कुछ भी नहीं किया, कोई कोई डिसीजन नहीं लिया मैंने कि वो लार्ज बनाया स्मॉल बनाया, मैंने मार्केट कंसिडरेशन आपको ब्रीफ कर दी। उसके बाद दूसरा ही मैंने ये किया, मैंने आपको कैलकुलेशन दी, और फिर स्मॉल आइटम्स की भी मैंने आपको मार्केट कंसिडरेशन ब्रीफ कर दी, और फिर कंक्लूजन में बता दिया मैंने आपको कि भाई अगर वो लार्ज आइटम्स पे जाता है तो उसके साथ क्या होना है, और अगर वो स्मॉल आइटम्स के ऊपर जाता है तो उसके साथ क्या होना है। और उसके बाद मैंने अपना ओपिनियन भी दे दिया कि भाई बेनिफिशियल ये होगा कि शॉर्ट टर्म में उसको लार्ज आइटम्स फायदा दे रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में उसको क्या, स्मॉल आइटम्स फायदा देंगे। और ये करके मैंने कंक्लूजन अपना आंसर वहीं बीच में, मतलब पूरा करके बीच में छोड़ दिया, लटका दिया मैंने एग्जामिनर को, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू डू इट, ठीक है बेटा। शहरोज ने मुझे क्वेश्चन भेजा था, शहरोज बहुत पढ़ने वाला बच्चा माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर न लगाए, तो मैं समझ गया था पहले ही कि अगर शहरोज ने भेजा तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन होगा। ऑलराइट गाइस, दिस इज योर 4A, ठीक है, इसका आप फोटो लेना चाहो तो आप फोटो ले लो। दिस इज 4B, ये इस पेपर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन थे दोनों, ठीक है, बाकी सारे देखो आसान है। क्राउड फंडिंग क्या होता है, लीज क्या होता है, कॉस्ट ऑफ न्यू डेवलपमेंट, बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट और न्यू प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है, एडवांटेज यूज जॉब प्रोडक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं दो दो, सही, बाकी सारे इसके आसान क्वेश्चन थे। अगर किसी के पास और ऐसा कोई
मुश्किल पेपर है तो मुझे भेज सकता है। दिस वाज पेपर 2 केस स्टडी अक्टूबर नवंबर 2021। इस केस स्टडी को पढ़ो, इसका ये 4A और 4B का आंसर जो मैंने लिखा है वो देखो, फिर इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ो। और क्योंकि पेपर है तो सर आप क्या करो, आप 22 और 23 की मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर रिपोर्ट को आप पढ़ो। इंशाल्लाह फिर जाओ पेपर देने, इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, सी यू एंड गुड लक, गुड लक, गुड लक।